हेलो। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ISS 2019 पेपर 1। हमें यहाँ पर एक जॉइंट डेंसिटी दिया गया है ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, जो कि है 4xy, where x is in between 0 and 1 and y is also in between 0 and 1. Okay, now we have to find the marginal distribution of the random variable capital X. और हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है और हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है। Now, by the definition of marginal distribution, we know that the marginal distribution of x denoted by f of x is nothing but the integration 0 to 1 f of xy dy. That is, अगर हम जॉइंट डेंसिटी को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मिलेगा, and this reduces to integration 0 to 1 f of xy is 4xy dy, which results in y square divided by 2, 0 to 1, for 2x is the right answer, where x is in between 0 to 1. So जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही ऑप्शन है. So B is the correct option. Okay. तो आइए एक दूसरा प्रॉब्लम भी देख लेते हैं. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ पर हमें चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमें ढूंढना है. तो आइए देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है. The first statement says that correlation coefficient is a measure of proportion or percentage in a relationship. अब हमें पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो मेजर है, it is nothing but correlation coefficient measures the correlation between two variables, that is, it measures how can change in one variable can affect the change in the other variable. So it is not a measure of proportion or percentage, therefore the statement 1 is a wrong statement. तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है इनमें से अगर स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है तो डी जो ऑप्शन है ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में से किसी में भी वन स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ डी में वन जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा. अब आइए देखते हैं कि जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है. The second statement says that statistic z square is an equivalent measure of the statistic chi square. हमें पता है कि chi square is nothing but sum over xi square, where xi's are normal 0, 1. Okay. And z is also follows normal 0, 1, therefore z square must follows chi square. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ से हमारा जो सी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है. तो हमारे पास सिर्फ दो चॉइस है, आइदर 2 and 3 और 2 and 4. तो पहले हम जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसे चेक कर लेते हैं.
The fourth statement says that 1 minus alpha significant point of f into comma in 1 distribution are same as reciprocal of 1 minus alpha significant point of f in 1 comma into distribution. अगर ये एक if distribution है and this is the point says m comma n comma alpha, then this portion is nothing but the alpha. ओके यहाँ पर हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n2 एंड n1 बोला गया है, तो हम m एंड n की जगह वही लिखते हैं n2 एंड n1, n2 and n1. Okay, therefore we can say that probability f into comma n1 greater than f into comma n1 comma alpha is equals to alpha. Okay, now हमें पता है कि f of m comma n comma alpha is equals to 1 by f n comma m comma 1 minus alpha. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी f2 f into comma n1 is greater than, sorry, this will be n2 and this will be n1, is greater than 1 divided by f n1 comma n2 comma 1 minus alpha is equals to alpha. Okay, therefore we can say that if n1 comma n2 is less than if n1 comma n2 comma 1 minus alpha is equals to alpha, therefore probability if n1 comma n2 is greater than if n1 comma n2 comma 1 minus alpha is equals to 1 minus alpha. ओके तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है that is 1 minus alpha significant point of f n2 comma n1 distribution is same as a reciprocal of 1 minus alpha significant points of f n1 comma n2, it is a wrong statement, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर f n2 comma n1 का हम अल्फा परसेंटेज पॉइंट लेंगे तो हमारे पास if n1 comma n2 का 1 माइनस अल्फा परसेंटेज पॉइंट आएगा, मतलब कि ये वाइस वर्सा है। मतलब अगर f n1 n2 का अल्फा होगा तो f n2 n1 का 1 माइनस अल्फा होगा। तो ऐसे ऑपोजिट केस यहाँ पर होता है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। तो इट मस्ट बी द ए ऑप्शन, क्योंकि 2 एंड 4 ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो एक गलत स्टेटमेंट है। तो इट मस्ट बी 2 एंड 3 द राइट स्टेटमेंट। और हम जो थर्ड स्टेटमेंट है उसे एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मेसोकार्टिक व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोचेस अ वेरी लार्ज वैल्यू, जो कि एक सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम बढ़ाते रहेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल की तरह दिखना शुरू करेगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मेसोकार्टिक। ओके, सो यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट है इट इज द करेक्ट वन। So that's all for today. Thank you very much.